घर पे प्रिपेयर कर रहा है, स्टडी कर रहा है फ्रॉम वेयरएवर, सपोज यू आर स्टडीइंग फ्रॉम माय बुक्स ओनली यहाँ पे, तो यू गॉट टू अंडरस्टैंड दैट एक एक एलओएस जो है ना हमारे सिलेबस का, वो रेड वाले बुक में, ठीक है, और व्हाइट वाले बुक में केवल इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्कस्ड है। अगर ये आपको देखना है कि मेरा कुछ छोटा तो नहीं, गो टू द रेड बुक, लुक एट द एलओएस लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट, दैट इज द एंटायर सिलेबस, ठीक है। तो यू शुड हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग उसके अंदर जो लिखा हुआ है, ठीक है। और व्हाइट वाले बुक में तो केवल कंसेप्चुअल चीजें डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं, और दिस इज अ वेरी थ्योरेटिकल टॉपिक in which the issues are very very easy. Okay, let me discuss out. They are saying that firms का objective क्या होता है? To maximize profits. Okay, firms का objective है to maximize profits. Profits is equal to what? Revenue minus cost. Revenue minus cost. Economics में cost refers to opportunity cost. Which cost? Opportunity cost. Opportunity cost is of two types: explicit cost and implicit cost. Explicit cost and implicit cost. Explicit cost हुआ the payment that we are making to outsiders, labor का wages, interest, rent वगैरह जो भी पे कर रहे हैं अपने, वो सारा का सारा explicit cost है. That is also known as accounting cost. What cost? Accounting cost. Implicit cost हो गया owner को जो मिलना चाहिए wages for the work done by him, ओनर को जो मिलना चाहिए इंटरेस्ट ऑन द मनी एम्प्लॉयड बाय हिम इन द बिजनेस, ओनर को जो रेंट मिलना चाहिए पॉसिबली ऑन द प्रॉपर्टी यूज्ड बाय हिम फॉर द बिजनेस, ओनर जो रिस्क ले रहा है उस रिस्क के बदले जो नॉर्मल रिटर्न उसको मिलना चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट, जो एसेट्स यूज कर रहे हैं बिजनेस में अकाउंटिंग वे में तो उसका डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन या डब्ल्यूडीवी जो भी लगा रहे होंगे, बट ट्रूली स्पीकिंग डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? इट इज अ डिक्लाइन इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द एसेट ना, it is a decline in the productive capacity of the asset. That is the meaning of economic depreciation, but the accounting depreciation is by formulas. So if you believe the economic depreciation is higher than accounting depreciation, you should deduct the extra depreciation, and if economic depreciation is lower than accounting depreciation, you should add back the extra depreciation. So there is something called accounting profit and something called economic profit. Something called accounting profit, something called economic profit. एकदम easy है. अगर रेवेन्यू जो है 50 लाख है, 50 लाख, और रॉ मटेरियल कॉस्ट हो गया 10 लाख, लेबर कॉस्ट हो गया 2 लाख, टैक्सेस हो गया 3 लाख, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट हो गया 2 लाख, ये सारा का सारा क्या हो गया? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ओनर को वेजेस मिलना चाहिए 1 लाख, ओनर को इंटरेस्ट मिलना चाहिए 2 लाख, ओके, ओनर जो है वो प्रॉपर्टी दे रखा है उसको रेंट मिलना चाहिए 3 लाख, अपने यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज किए 1 लाख, जबकि इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन is 1.2 lakh, समझ? 1.2 lakhs, तो 0.2 lakhs क्या होगा? एक्स्ट्रा। ओनर को नॉर्मल रिटर्न मिलना चाहिए, नॉर्मल रिटर्न which is called normal profit. Normal profit is suppose 3 lakh. तो ये सारे कॉस्ट क्या हो गए? Implicit, और ये सारे कॉस्ट क्या हो गए? Explicit. Accounting profit is revenue minus explicit cost. Revenue minus explicit cost. Economic profit is revenue minus explicit cost and minus what? Implicit cost. ठीक है? Revenue minus explicit minus implicit cost. If economic profit is equal to zero, zero माने आपको normal return मिल गया. Economic profit is zero मतलब ये less करने के बाद zero है ना? तो did you get the normal return? Yes. Did you get your wages? Yes. Did you get your interest? Yes. So why should you get more? Okay. Profit should be equal to what? Zero. Zero माने normal profits. What profits? Normal profit. And if pi greater than zero, it is super normal profit. If pi less than zero, that is what? Loss. You're not getting normal profits. As an investor, if you're not talking about economics, जो कि ज़्यादा interest का है भी नहीं अपने, if we are talking about investors building a portfolio for our clients, we would like to invest in industries and companies which are able to generate what? Super normal profits. जिनमें pi can be greater than zero, जिसमें pi can be greater than zero, because वहीं पे share price बढ़ेगा और shareholders wealth enhance होगा, ठीक है? तो यहाँ पे we are talking about the concept of super normal profit and losses, ठीक है? तो normal profit मतलब pi equal to what? Zero, ठीक है? Profit equal to zero मतलब normal profit, because which profit am I talking about? Economic or accounting? Economic. Economic profit zero, इन सबको less करने के बाद आया, तो ये सब तो आपको मिल ही गया, ठीक है? That is normal profit. तो ये सिंपल सा डिस्कशन कैरी आउट किया ये लोग कि firms organize production with a view to maximize profit.
प्रॉफिट इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू में भी कुछ राइटअप दिया हुआ है, बोल रहा है कि देयर माइट बी सम साइकिक इनकम। व्हाट इनकम? साइकिक इनकम। यू मे बी डूइंग सम बिजनेस जिसमें मॉनेटरली आपका जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो तो हो रहा है, बट यू आल्सो गेट सम सैटिस्फैक्शन आउट ऑफ डूइंग द बिजनेस। तो अगर वो साइकिक इनकम क्वांटिफाई किया हुआ है तो वो अकाउंटिंग प्रॉफिट में आएगा कि इकोनॉमिक प्रॉफिट में आएगा? इकोनॉमिक। अकाउंटिंग प्रॉफिट में केवल मॉनेटरी रेवेन्यू आएगा, और अगर साइकिक इनकम दिया रहा वो कहां पे आएगा? इकोनॉमिक प्रॉफिट में। ठीक है तो, और अकाउंटिंग प्रॉफिट में केवल कौन सा कॉस्ट लेस होगा? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और इकोनॉमिक प्रॉफिट में कौन सा कॉस्ट होगा? एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, और इम्प्लिसिट कॉस्ट का दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। एक तो इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन, ठीक है, व्हिच इज द एक्चुअल डिक्लाइन इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द एसेट्स, और दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट। व्हाट? नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज द नॉर्मल रिटर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, नाउ दिस डिस्कशन, मैंने इसका जैसे रेड वाले बुक में मैं नोट्स लिख रखा हूं तो हर जगह लिख रखा हूं किसका प्रोबेबिलिटी हाई, मीडियम, लो है एग्जाम में आने का। ठीक है, इसका टेस्टेबिलिटी बहुत हाई होता है एग्जाम में, एंड इट्स वेरी सिंपल। मैंने डिस्कस करते हुए आप नंबर जॉट डाउन करके और सोच सकते हो कि क्या मतलब है किस फिगर्स का। तो firms organize production to maximize profit, profit is equal to this, and then speak out accounting versus economic. ठीक है, तो that was our first discussion. एक बार बुक खोले ना, व्हाइट वाला बुक, उस पे पेज नंबर 131 132 में अपने हैं, क्योंकि नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, मेरे डिक्टेट करने से कोई सेंस नहीं होगा। पेज 131 132। ठीक है, तो पेज नंबर 131 में केवल स्टार्ट करने के लिए लिख लो पेज नंबर 131 में जहां पे स्पेस है, जस्ट टू पिक अप द चैप्टर, जस्ट राइट ओवर देयर। फर्म्स ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन विद अ व्यू टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। फर्म्स ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन विद अ व्यू टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। फर्म्स ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन विद अ व्यू टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। with a view to maximize profits. Profit का symbol है pi. Okay, profit का symbol is pi. Next slide. Pi equal to total revenue minus opportunity cost. Total revenue minus opportunity cost. ठीक है, टोटल रेवेन्यू से एरो देके लिख देना, इंक्लूड्स साइकिक इनकम। टोटल रेवेन्यू इंक्लूड्स साइकिक इनकम, यानी एम आई टॉकिंग अबाउट व्हिच प्रॉफिट? इकोनॉमिक। हम पूरा इकोनॉमिक प्रॉफिट का बात कर रहे हैं। और जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था उसका दो पार्ट्स कर देना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेफ्ट साइड में एक्सप्लिसिट, राइट साइड में इम्प्लिसिट। लेफ्ट साइड में एक्सप्लिसिट और राइट साइड में इम्प्लिसिट। Opportunity cost is explicit and implicit. ठीक है, next slide. We would like to invest. We would like to invest the client's money. We would like to invest the client's money into those industries. Into those industries. Into those industries which can generate supernormal profits. Into those industries which can generate supernormal profits. Which can generate supernormal profits. So what do you think common sense wise? No eco का knowledge required. Supernormal profits किन industries में होगा जहाँ पे competition is high or low? Low. जहाँ पे competition is what? Low. उल्टा बोले तो जहाँ पे concentration is what? High. माने the power is limited to 2 or 3 few firms. तो वो few firms जो है they will earn supernormal profit. And why is that happening? That's happening because उस market में entry allowed है कि नहीं allowed है? नहीं allowed है, तभी तो few firms है। तो सब related है पूरा का पूरा equity वाला part इससे। ठीक है ना? क्या लिखा हुआ लास्ट में? Supernormal profits bracket pi greater than 0. Supernormal profits bracket pi greater than 0. Bracket pi greater than 0. वहीं पर लिख देना, नीचे जहाँ space है pi is inversely related to competition. हम ऐसे लिखे थे, okay? Pi is an inverse function of competition ना? Higher the competition, lower the profits. Lower the competition, higher the profits. ठीक है? तो pi is inversely related to competition. Profit जो है वो negatively related है competition से।
तो वैसे हमने सोशलिस्टिक बातें करें, मतलब फ्रॉम द गुड ऑफ द इकोनॉमी यू विल टॉक दैट सारे इंडस्ट्रीज में कंपटीशन क्या होना चाहिए, हाई. बट when you are talking about increasing the wealth of the client, okay, putting his money, you want to search for industries जहाँ पे competition क्या है, low, जिससे वहाँ profits आ सके और टिक सके. ठीक है ना? Competition is a major issue, okay, when we move ahead into equity and portfolio management. ठीक है? Profit is a negative function of competition. Lower the competition, higher the profits. ठीक है? Okay. नेक्स्ट पेज में कुछ नंबर्स के साथ वर्किंग दिया हुआ है सो दैट वी फील दैट द एंटायर डिस्कशन इज कंप्लीट. उस पर रेवेन्यू दिया हुआ है 60 lakhs और माइनस किया हुआ है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, मटेरियल, वेजेस, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन. व्हिच डेप्रिसिएशन? अकाउंटिंग, जो स्ट्रेट लाइन वगैरह से आया होगा. तो उससे आ गया अकाउंटिंग प्रॉफिट. इसमें एडजस्टेड फॉर इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन, लुक एट द फुटनोट, इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन वाज ओनली 56,000, जबकि अपने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन क्या था 80,000. तो हमने क्या किए हैं, ऐड बैक. अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन 80 था जबकि ट्रू डिक्लाइन वाज 56, तो ऐड बैक किया. इम्प्लिसिट वेजेस, ओनर को जो मिलना चाहिए. फॉरगॉन इंटरेस्ट, ओनर को जो मिलना चाहिए. नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल फॉर द बिजनेस एंड रिस्क टेकन, वो सब लेस करके भी ये क्या है, इकोनॉमिक प्रॉफिट पॉजिटिव. That is what? Supernormal profit. ये जो प्रॉफिट है सुपरनॉर्मल प्रॉफिट. लॉजिकली अगर ये नेगेटिव आता, क्या आता, नेगेटिव, तो इन दैट केस परहैप्स यू शुड नॉट डू दैट बिजनेस इन द लॉन्ग रन ना. ऐसा बिजनेस करके क्या फायदा जिसमें अपने को जो नॉर्मल रिस्क ले रहे हैं उसके बदले रिटर्न नहीं मिल रहा है, जो अपने मेहनत कर रहे हैं उसके बदले अपना वेजेस नहीं मिल रहा है. इट्स बेटर टू लीव दैट बिजनेस एंड गो टू अदर बिजनेसेस. टेम्पररी फेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शॉर्ट रन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इन द लॉन्ग रन we would not like to stay in businesses जहाँ पे profit क्या होगा, negative. ठीक है? Because we are not getting normal returns. We can earn it elsewhere. तो okay, that stuff is given over there. इसमें last bullet देखना, बाकी सब normal है. Last bullet in that page. Last bullet है, firms achieve economic efficiency when they maximize economic profit. Okay, circle the word economic efficiency. Economic efficiency वाला वर्ड सर्कल कर दो and you get some space I think on the page 133 में जरा सा स्पेस और आइटम लिखने का. वो लिखने का आइटम का मेरा बात सुनना पहले. एक एलओएस दिया हुआ है इस चैप्टर में, डिफरेंशिएट बिटवीन टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी. ठीक है? तो याद कैसे करें उसको, ऐसे याद करते हैं. अपना टॉपिक चालू हुआ ये बोलते हुए कि फर्म्स ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन विद अ व्यू टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. If you want to maximize profit, you should minimize cost. Ceteris paribus, you should try to reduce your cost. So to reduce your cost, you got to be what? Efficient. माने inputs को efficiently utilize करना पड़ेगा. Inputs को efficiently utilize करना पड़ेगा. तो suppose 3-4 inputs हैं जिनके हेल्प से मैं आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो मेरे पास चॉइस है हम कौन सा इनपुट को कितना यूज करें. थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी है, ये वाला कितना यूज करें. तो टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी क्या होता है, यूजिंग द लीस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. लीस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट्स. ठीक है? और इकोनॉमिक एफिशिएंसी होता है प्रोड्यूसिंग द आउटपुट एट द लीस्ट कॉस्ट, व्हिच मींस अगर कोई ऐसा इनपुट है जिसका दाम बहुत ज्यादा है, तो जाहिर है उसको तो अपने को कम यूज करना चाहिए ना. और दूसरा इनपुट है जिसका दाम बहुत कम है, तो उसका क्वांटिटी अपने ज्यादा यूज करें तब भी कोई हर्ज नहीं. तो हो सकता है उनको ऐड करेंगे. इफ वी ऐड वी विल फाइंड दैट जो इनपुट का यूसेज है वो हाई आ रहा है क्वांटिटी वाइज. 2 units, 4 units, 7 units you add you get a higher total. But ultimately 2 units आप उसका यूज कर रहे हो जिसका दाम क्या है ज्यादा, तो कॉस्ट कम लगा ना उसमें, तो केवल 2 units. और 7 units उसका यूज किए जिसका दाम क्या था, कम. तो they are trying to say that we are not concerned about technological efficiency over here. We are concerned about which efficiency? Economic. खर्चा कम करना है ना. Inputs 2 unit 4 unit से क्या मतलब है? We should be concerned with the cost. So not a hyper discussion. What to be aware? Technological efficiency focus on the amount of the inputs used, and economic efficiency focuses on the cost of the inputs used. ठीक है? तो वो चीज वहाँ लिखते हैं राइट साइड में. To maximize the profit. To maximize profit, we have to reduce costs. We have to reduce costs.
That is, production has to be organized efficiently. Production has to be organized efficiently. Production has to be organized efficiently. Efficiently. जो efficiently लिखा है जहाँ पे, ओके, उसको अंडरलाइन और वहीं से दो पार्ट्स कर दो. एक हो गया टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी और एक हो गया इकोनॉमिक एफिशिएंसी. टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी, इकोनॉमिक एफिशिएंसी. टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी में लिख दो लीस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट्स. लीस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट्स, उनके कॉस्ट से मतलब नहीं है, लीस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट्स. और इकोनॉमिक एफिशिएंसी हो गया प्रोड्यूसिंग एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट. प्रोड्यूसिंग एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट. प्रोड्यूसिंग एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट. लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट. ठीक है. और एक डिस्कशन है कि अपने को जो वर्क है वो तो फर्म के एम्प्लॉइज से करवाना है वर्क. तो वर्क करवाने के लिए फर्म के एम्प्लॉइज से दो तरह का सिस्टम्स होते हैं. वन इज कॉल्ड कमांड सिस्टम, द अदर इज कॉल्ड इंसेंटिव सिस्टम. कमांड सिस्टम, इंसेंटिव सिस्टम. कमांड सिस्टम माने क्या हो गया? वी हैव अ हायरार्की इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क इज देयरफॉर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सुपीरियर टू द जूनियर. ठीक है, बाय वे ऑफ कमांड. उसमें प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम क्रॉप अप होता है. कौन सा प्रॉब्लम? प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम. If I am the principal, you are my agent, and I have appointed you to do such and such work. ठीक है? तो on a scale of 0 to 10 level of efficiency, agent क्या करेगा? करीब 5 या 6 पे ऑपरेट करेगा. 0 to 10 के लेवल पे. क्योंकि अगर वो 5 या 6 के नीचे लेवल पे ऑपरेट करता है तो हम उसको फायर कर देगा. और अगर वो 9 या 10 लेवल पे ऑपरेट करता है तब भी तो उसको